चलिए कोई भी एक मूवी बॉलीवुड मूवी ऑन पुलिस ऑफिसर रीमेक बनाना चाहते हैं तो वो कौन सी होगी आपके हिसाब से? सिंघम ही बना और सिम्बा इज ऑल्सो गुड। पुलिस, गुजरात पुलिस का लोगों का मोटो क्या है? सेवा, सुरक्षा, शांति, ट्रिपल एस। और ये सेवा, सुरक्षा, शांति कब होगा? जब ट्रिपल पी साथ में मिलेंगे। पुलिस, पीपल एंड प्रेस, तीनों के बीच में कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। ट्रिपल पी का कम्युनिकेशन होगा तभी पुलिस सेवा, सुरक्षा और शांति दे पाएगी। होम मिनिस्टर श्री हर्ष संघवी सर, he has given the free hand to the police officers, to constables that finish the notorious person. But sir, this is actually commendable. Just because you don't have any kind of workshop, you don't have any kind of study within this acting field, still you are a good actor and appreciated by your director. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. कहते हैं कि द जॉब ऑफ द पुलिस इज द हार्डेस्ट जॉब, क्योंकि एक पुलिसमैन को हमेशा से एक प्रॉब्लम रहता है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस का। दे आर द सर्विस फॉर 24 आवर्स फॉर अस। आज हमारे पॉडकास्टर ऐसे एक पुलिसमैन श्री अरुण मिश्रा, बट आउट ऑफ दिस बैलेंस प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, उन्होंने अपना एक आर्म ओपन कर दिया है, that is acting. He is debuting into the Bollywood via Gyan Vapi Files. एक policeman, एक real actor और एक real hero now into the action. तो यही पॉडकास्ट हमने बात की है कि how he get into the Bollywood as well as उनके moral values और उनका जो एक attitude है serving to the nation. आइए सुनते हैं। वेलकम सर टू द माइंड मैपिंग पॉडकास्ट। थैंक यू a lot. सर आप ये बताइए कि ये आउट ऑफ द पैशन आप पुलिस ऑफिसर बने या आपका पहले से ये सपना था? See, serving the nation, it is the main priority. Either you can serve the nation in police also, being in social worker also. But serving the nation, you have got an authority, extra authority to help the people, to save the people from the clutches of the crime and to give them justice. So that's the reason khaki pehna zaruri. No, that is right, but it is from the starting of your career, or you can say it is your dream, or just you have just learned about. See, if you have a passion, if you got a passion, then and there only you can wear the khaki. No, not everyone has the privilege to wear the khaki. Yes, we have got an examinations, normal examinations देते हैं। एग्जाम क्लियर करने के बाद फिजिकल होता है, ये सब क्लियर करने के बाद खाकी मिलती है। यू हैव टू अर्न दिस खाकी, यू कैन गेट ऐसे ही खाकी नहीं मिल जाती, यू नीड टू अर्न दिस। सो इन पास्ट यू वर इम्प्रेस्ड बाय समवन और समथिंग? सी, आई कैन से दैट नॉट फ्रॉम द पास्ट, बट राइट नाउ आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद आवर Prime Minister Shri Narendra Modi sir. I idolize him. Okay. I consider him as my role model. So that's the reason I'm a huge fan of Narendra Modi sir. So what are the prime qualities from which you are impressed? See, first of all, he's a straightforward person. Yeah. Which I inculcate in myself. I idolize myself in him. Second thing is that he's into the fitness freak. At this age also, how much fit he is. He do yoga and every day in the morning, and he has not even taken a leave. He haven't taken any leave till his entire career. Yeah. It same as me. I myself, I look, I consider myself fit and I work hard to maintain my fitness. Yeah. So can we say that Prime Minister Narendra Modi has affected your life from the initial stage? Yes, you can say that. No, you cannot say that. You have to say that. Okay, I have to say that. You have to say that. Right. So starting from that particular thing that you became a policeman, now you are posted at Morbi, I guess, right? So what is your routine right now? See, compared to the cities, the district levels, the policing, little bit of
less stress compared to cities. Mhm. So I idolize myself, get up in the morning. I motivate myself, get up in the morning, freshen up myself, and hit the gym. I Okay. run every day 5 kilometers. Then afterwards, I do the basic body training. Then afterwards, the routine life goes on. The policing work, the vehicle checking, the crime detection, everything. The routine works goes on. Yes. So out of this duty, you are just maintaining yourself by doing exercises in the morning. What else you are doing for your body apart from exercise? Apart from exercise, the diet is main. Consider you have to follow the strict diet. Strict diet. You have to cut the sugar intake in you. Yeah. I don't take even a single bit of sugar Mm-hmm. or any sweet. Right. Second thing that you need to have, complete strict diet. You need to follow complete strict diet, and it should not be oily and all. So I avoid this oily food and all, the junk food. You can say that. Now I can see the results on yourself because you are a well constructed man, well structured body, and manly voice. Yeah. Mm. Truly impressed by that. Thank you. Yeah. That's the reason the Bollywood industry is impressed by my personality. Yes. I'm getting good offers, and everything is in the pipeline. So Mm. let's hope for the best. Definitely. We will go to that particular Bollywood journey in later part. But yeah, initially just wanted to explore your side and your personality. So just a myth, like people have a misconception like being a policeman is like there are so many hurdles, there are so many duties. Anytime you have to go to the duty and balance between personal life and professional life is so much difficult. So is it misconception or is it true? It is true because see the person in the police department, Mm. they are having a lot of hectic schedule. Okay, they have they have stopped living. I mean to say they just do the duties and all. Mm. They have got extra responsibilities of family as well as the working schedule and all. It is very tight, so they have forgot to leave. But I want to prove this wrong. Being a police officer, I am a human being too. I myself have an feelings. So I want to come out of the comfort zone. So that's the reason I have come out of the comfort zone. But apart from doing the working, discharging my duties with dedication and sincerity, apart from doing this one, all the duties, I am, improvising my personality and my mental health as well. Mhm. So you can give an example of two players, Sachin Tendulkar sir. He, when at the time of retirement, also he told me, in every match, I am still learning. So life is a journey. You need to learn. Obviously. Whatever the hurdles come, you need to learn and you need to take it as a positive way, Mm. right? Right. So what else you are facing which can be hurdle in between balancing the life? What are the hurdles you are facing right now? See, hurdles. It is mandatory in each and everyone's life. If hurdles is not there, then the life will go smoothly. Yeah. If hurdles are there, then we individual. I'm talking about myself. If hurdle is there, then it is good for me Mm. to make me mentally more strength, Yes. to make me mentally more power, more the sustainability. You can say that the flexibility and the sustainability, which will make me more powerful. And if so, for an example, if small hurdles come, then I would be having good, mental strength to face that hurdles. Mm. So I would be more prepared to face the maximum hurdles as well. Rather than keeping your weapon, you need to fight with that hurdle. Yeah. So next issue is like it is not an issue, but it is happening with every field, not as a policeman, but with every field. Sometimes it happens that you walk up in the morning and that you don't have any kind of motivation to go to the duty. Any duty, it is not like policeman, but any duty. If you are doing a private job, government job, it doesn't matter. But it happens that in the morning you don't have any kind of motivation to go to the duty. So
Is it happening with you, or if it is happening, then how can we counter that? See, if you'll take an example of myself, I don't have any difficulties, because if even if I set an alarm in my phone, but then also naturally my subconscious mind wakes me up that Ujja beta, Biological cycle is already set. yeah, gym Mm. jana. Yes. I myself have trained my body, so I'll wake up in the morning, listen to my Krishna Bhagwan's bhajan, Hanuman Chalisa. Yes. Then afterwards, I'll freshen up myself, drink 1 liter of water, warm lukewater. Then have a soaked dry fruits. Then I'll hit the gym. Yeah. And afterwards, coming from the gym, I'll freshen up myself, do the puja and all. I'll go to discharge my duties. Yeah. So As a ek bhi din nahi hua, not even a single day has happened with me that I'm demotivated. Sometimes hota bola theek hai, hota ye bhi. If hurdles are not there, then there is no need of living. जीने का मजा ही नहीं आता. थोड़ा बहुत स्पाइस होना चाहिए. होना चाहिए. But if you get some kind of demotivation or not motivation, so what are the sources of motivation for you? Small appreciation. Okay, appreciation from hierarchy or Yeah, something. appreciation from the hierarchy and satisfaction level from the lower people. If, for example, if I've given the justice to some grievance person, the person who's coming with the grievance, who the person are coming to the police station? The person who is affected by the grievance is having the grievance. He or she is having the grievance. So if I'm in this, at this level to get that person a justice, though I would be more than happy that at least God has given me the khaki. Yes. That I can give justice to that person. So I would be more than happy, and I would be more satisfied. So that gives me the boost, that gives me the kick for the next day to come. Yeah. So many a time it happens that people have many complaints, and people are just coming to police station and complaining. It is happening, right, with you. Do you find any kind of funny complaint at any stage, which is very funny kind of, or your police station is just like that, ये क्या complaint लेके आ गया? Yeah, it sometimes happens. No? जैसे Yeah. मान लो फॉर एग्जांपल दो दोस्त हैं, एक ने दूसरे दोस्त को पैसे दिए, अब वो दोस्ती के चक्कर में 2 या 3 साल से पैसे नहीं दे रहा है, वो फिर कंप्लेन करने आता है कि सर इसने मुझे पैसे नहीं दिए. तो बोले पैसे क्यों नहीं दे रहा तो भाई, और दैट इज नॉट, पुलिस का काम ही नहीं पैसे निकालना. बट देन ऑल्सो कंप्लेन आती है तो हम पूछते हैं, बुलाते हैं, दोनों का स्टेटमेंट लेते हैं, रजिस्टर करते हैं. तो दूसरा दोस्त क्या बोलता है कि सर मैं अगर पैसे दे दूंगा तो मुझे भूल जाएगा, कि पैसे के बहाने तो मुझे याद करता रहता है. सो दिस इज वन ऑफ द फनी स्टोरीज. ऐसा कितना होता है. समटाइम्स कोई फेक कंप्लेंट्स भी लिखवाते हैं. दैट इज वी हैव गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, राइट. Daily we have to interact with minimum 50 to 100 or 100 to 150 people every day. Every day? Yeah. At district level also you are just getting complaints? No, like means not complaint. I'm not talking about the complaint. I'm talking about the interactions. Okay. समझो कोई vehicle checking में interaction हुआ, फिर कोई wrong side आ रहा है, फिर normally कोई complaint लिखाना आ रहा है, complainant के साथ में उसके friends आ रहे हैं, सब. I'm talking about the normal interaction. Near about 50 to 150 के बीच में interactions होता है. Sometimes नहीं भी होते हैं. It depends upon the day, how your days goes on. So are these interactions are impacting your mindset at any stage? Exactly. It makes us, not I'm talking about myself, I'm talking about the entire police department. Yeah. If we have got a lot of interactions, then we will come to know the interactions, we will come to know the mindset of the people. So psychologically, we ourselves from the constabulary rank till the IPS level, all are very much groomed that within 2 minutes of time, if I'm talking to any guy or any girl, within 2 minutes of time, we can read the psychological. We have psychological brain. We can easily read them. Right. So that is a plus point if we are doing an interaction with the people. Another thing, just want to ask. My father was a teacher, right? And he has that sixth sense that anybody in the classroom in exam is doing copy or something, immediately just catch them and then punish them, right? So policeman has also that kind of sixth sense. Whenever they are just going to kind of checking or something,
they know that after seeing a person, they know that this person is culprit and this person can be having something. I'm giving you 2 or 3 examples. If the other guy is a criminal or have done any crime, so he will not contact you with eye to eye contact. He will not have an eye to eye contact with you. First of all. Second thing is that if we are questioning him or her, then they will stammer. If the person who is lying, that is psychological effect. If any person who is lying, then that person would stammer, and he will not speak up to the point. He will speak here and there. He will go around the bushes. He will not hit the bush. So that is 1 or 2 psychological, points which we are able to judge that person is a criminal or not, or he has done any small mistake or not. Yeah, but talking about public speaking or public handling, you are getting most of the things at the stage, right? So public speaking and public handling is your forte right now, and you can handle up to n numbers of people in the day or n numbers of people throughout any kind of gathering or something. So any kind of hurdles you are getting to understand the situation when you are at public gathering or something? See, public gathering is totally different thing, because we are also a human being, right? So being a human being, it is very hard to spot that person culprit from among the people public gathering. So, but then also their behavior among the people. If one person is criminal, then his body language tells that this guy is a culprit. So we'll interrogate him. Then obviously we'll come to the point. So next, coming to your Bollywood part, is it just your hobby or you are serious in this field, acting field? I'm passionate. You're passionate. Yeah, extremely. I'm very much passionate. Because since childhood, it was a passion for me. My mom, she used to, let me participate in the extracurricular activities like dance and sports and all. Since then, I'm a good dancer. I'm a good actor also. So for that, apart from discharging my duties with sincere efforts and dedication, I myself, I'm going into this passion world. Because being a police officer, being a police, I myself also have a personal life. See, देश के लिए तो सेवा कर ही रहे हैं, ठीक है, फिर अपने लिए क्या, जब बूढ़े हो जाएंगे तब, जब मर जाएंगे तब, मरने के बाद कोई नहीं पूछता, ठीक है, देश की सेवा कर ही रहे हैं, ठीक है। मैं 2 जनों की मानता हूँ, देखो, एक जो आर्मी जवान है, आई एम सैल्यूट टू देम, ठीक है, आर्मी जवान है, वो देश की सेवा वहाँ पे कर रहे हैं, बॉर्डर पे, सरहद, और हम लोग सोसाइटी के अंदर क्या कचरा साफ कर रहे हैं, ठीक है, पुलिस का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ भी तो है। सो दैट पैशन आई एम फॉलोइंग इट। सो बीइंग अ पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ विद blessings of Lord Krishna and my parents. I'm getting good, opportunities, Bollywood projects, big projects. That is in my pipeline right now. So it's I'm following passion. So if this is your passion, at your first opportunity, were you auditioned by someone? Actually, what happened? I did a Gujarati Jagat movie. Jagat movie, Gujarati I did, and they approached me to coordinate with DGs and all. So it was an opportunity for me. For that reason, I coordinated with my honorable DG sir, DG sir Sri Vikas Sahay sir. Then afterwards, the Grah Mantralaya, the Home Ministry's office, they all helped me out, and the Jagat shooting was done, in the Karai Police Academy. And in that also, they were not aware that I was a good actor or not. So they have given me the role. All the licensing was done by me. And in that, I played a role of police inspector. And apart from that, it was based on child trafficking. The moral story was to, help out the parents and to
make an aware to make an aware to the society that how this you need to take care of your children. It was on child trafficking. So in that I did a job role of police inspector. In fact, DG sir, he himself came on the set of Jagat movie, and he himself appreciated our work. And after that, I bagged a role in Gyan Vapi Files. It is a big banner of the Reliance Entertainment release. So getting a debut in Bollywood as a big actor. So I really appreciate that. I'm feeling proud that I'm getting roles. Apart from looking at this character, I'm getting big main roles, and you'll see in the later future. Yeah. So where you audition for Gyan Vapi Files? Yeah, they have because the casting directors, they themselves, they take they look at the movies. From the movie, they additionally they take an audition. So I was being auditioned by them, and through video camera. Who was the casting director for movie? The production department from the Reliance Entertainment itself, they casted me. So can I ask if you want to disclose just? Yeah. What is the storyline and what is your role in brief? Yeah. See, actually, it is based the Gyan Vapi Files, a Taylor murder story. Yeah. It's the name itself suggests the story is regarding the Gyan Vapi, right? Yeah. The place, it's in Varanasi. Gyan Vapi Mandir is in Varanasi, Uttar Pradesh. It was, the heat of speech. It was the debate of the nation that whether this Gyan Vapi belongs to the Muslims or Hindus, right? So the Supreme Court gave the direction to the Archaeological Survey of India to give the detailed report and submit to the Supreme Court that whether this is mandir or masjid. So this story is about the Gyan Vapi, a Taylor murder story. A Taylor murder story is that late Shri Kanhaiyalal Sahu was brutally murdered in Udaipur on the expectations of that Nupur Sharma. She gave a statement. On that basis, he gave the statement supporting Nupur Sharma. So he was brutally murdered. So the story is based on that. The lead actor has been played by versatile actor Vijay Raj sir. So he is very versatile actor, and the proper justification he has done to the role. So this is the story. So your role again is as a police. No. And that I am playing the main role as the director of Archaeological Survey of India. Okay, that is me. Right. So I will be submitting the report of Gyan Vapi to the Supreme Court. To the Supreme Court. Perfect. So do you have any kind of research as per your role, or you just casted yourself? I'm just asking that how do you prepare your role? See, lot of improvisation is done on the set. Okay. See, if you have given the script, right, the movie doesn't go with the script. Practically, it goes with the stories and all, right? But on the spot, there is a lot of improvisation. The director gives that Arun sir, you need to state this statement. You need to say in that way. You need to say in anger mode. So the improvisation was done by me. So for that reason, I was being appreciated by on entire set that they appreciate, sir, that we didn't know that you are a good actor. So I was being appreciated by the director itself. But sometimes it happens that director doesn't allow any kind of improvisation in scene or something. But yeah, if it is good, then they will accept. See, they have seen my acting skills because the director is captain of the ship. So he himself saw the acting ka keeda in me. He saw the acting ka keeda. आपको रिहर्स करते देखा होगा कुछ ना कुछ. No, rehearse नहीं. If you'll tell me, okay, sir, you need to do, I'll give you the script. You need to do this acting. I'll do on the spot. Wow. By grace of God Almighty, Lord Krishna, I am able to do everything. The on the spot improvisation was been done, and they really appreciated. So that's the reason they were saying that, sir, we really underestimated you. That we thought that you are not a good actor.
So being a police officer, you are just a good actor. So on that basis, I have got 2 or 3 projects in my hand, in my kitty. Perfect. Perfect. So next question is like you want to answer or not, I don't know, but it is optional question. If it is goes right and you got so many opportunities in the Bollywood, will you leave the job as a police officer? See, to be frank with you, as an honest reply through your podcast, okay, whatever the role I have got, the Jagat you can consider or Gyan Vapi, it is because of my khaki. Because of my khaki, I have Yes. got the role. Yes. So this is my bread and butter. Hmm. So because of khaki, I'm getting the role. So I'll never leave this khaki job because of this only I'm getting the roles. And apart from that, that is my acting skills and my capability, my ability to inculcate and to implement whatever it is. I'm like a water. If whatever the structure will given to me, I'll do it. Yeah. But the thing is that because of this khaki, I've got 2 roles, and other roles which I'm getting, it is because of my acting skills, the composure, the continuity of the scene, the presence of mind, the sense of humor. An actor, he's not an actor. He has to be the mixture of everything. Everything. Versatile. Mixture of every emotions. The anger, the comedy, the emotions, the sensuality, everything. So as an actor, they are appreciating me. Yeah, but sir, this is actually commendable. Just because you don't have any kind of workshop, you don't have any kind of study within this acting field, still you are a good actor and appreciated by your director. Because I'm not asking that people will appreciate you, but if director is appreciating you, then it is a big thing. Just because director cannot be satisfied by any actor at the first stage. That is the true thing in industry. But if you are appreciated by the director, then it is a commendable. I really appreciate it, and I have a video with me. In that itself, the director is when I'm entering, the director himself is saying, "Nice, nice, very nice, very nice." Because on the set, near about minimum 200 people are there, from the lightman to the technician and the makeup artist, the spot dadas, the spot boy, the PDs. Every person was appreciating my acting. So let us hope for the best. Yeah, that is good thing. Sir, any movie which is based on police officer, do you recognize any movie which is your favorite? The first was Rohit Shetty's movie Singham. Singham. Yeah, it is based on the people, the police officer from the constabulary to the IPS officers, all have to face the same problem. Yeah. So it is fact. So कोई means criminals ऐसे भी होते हैं, लेकिन आजकल the leaders, the politicians are supporting the backing up the you can see our youth icon, Home Minister Shri Harsh Sanghvi sir. He has given the free hand to the police officers to constabulary that finish the notorious person, the समाज के दो दुश्मन हैं, दो असामाजिक तत्व है, जो नेगेटिविटी जो फैला रहे हैं समाज में, दो सोसाइटी को बदनाम कर रहे हैं, सोसाइटी को गंदा कर रहे हैं, उन पे एक्शन लेने की फ्री हैंड दे रखा है. सो पुलिस एज अ पुलिस बहुत मज़ा आता है क्रिमिनल्स को पकड़ पकड़ के पासा कर दो, तड़ी पार कर दो, या फिर कोई क्राइम रेट काफ़ी कम हुआ है जब से गृह मंत्री जो कि आइकॉनिक होम मिनिस्टर है हमारे, और यूथ है. कभी-कभी उनके स्टेटमेंट से ट्रस्ट भी होता है, और किया भी है जो उन्होंने बोला है, किया है. उन्होंने जो बोला है कि हमें 24 घंटे के अंदर एक्शन, कोई क्राइम होता है 24 घंटे एक्शन, तो हुआ भी है, पुलिस ने किया है. वी हैव सीन दैट. सो फ्री हैंड मिलेगा पुलिस को. पुलिस कभी गलत नहीं करेगी, ठीक है, पुलिस कभी करती भी नहीं है. पुलिस करती है सोसाइटी को बचाने के लिए. असामाजिक तत्व मैं क्या कहा था, दो है, एक तो जो आर्मी के जवान, ऑफिसर जवान जो सरहद की बॉर्डर की रक्षा करते हैं, और एक जो पुलिस है जो अंदर की गंदगी साफ करती है. सो दैट इज गुड. तो व्हाट डू यू फाइंड दैट
साइकोलॉजी क्या होती है ऐसे क्रिमिनल्स की, जो आप जो बोल रहे हो असामाजिक तत्व, तो उनकी साइकोलॉजी वैसे क्या होती है? इफ यू आर इंटरेक्टिंग विथ हिम, डू दे ओबे यू विद इन पुलिस कस्टडी, और वहां पे भी वो ऐसा ही दिखाते हैं कि हम कुछ है? पुलिस के सामने तो भल भले बैठ जाते हैं, ठीक है, भल भले बैठ जाते हैं। अभी क्या रील्स नहीं आते देखते, बिफोर एंड आफ्टर, या बिफोर आफ्टर, बिफोर में दादागिरी कर रहे बैठे भाई Yes. पुलिस स्टेशन के सामने कुर्सी, फिर आफ्टर शॉक्स दिखते हैं। अभी तो लंगड़ाते हुए भी चलते हैं, वो भी देखा है। बिफोर सब गुंडे बनते हैं, बोले वी आर गॉड, वी आर हम्म। सेव, फिर बाद में आफ्टर शॉक्स कैसा होता है पता चल जाता है ना, फिर उसके बाद वो दिखेंगे नहीं। तो यही है, फ्री हैंड पुलिस को दे रखा है बट आई बिलीव पर्सनली दैट ये डर तो होना चाहिए लोगों में। ऑब्वियसली, अगर और ये डर हमें अच्छा लगा। यस, अगर ये डर होगा तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल भी हो सकती देखो, है। नॉर्मल सिविलियंस होते हैं जो बेचारे नौकरी करते हैं, जो नॉर्मल बिजनेसमैन होते हैं, जो पारिवारिक इंसान होता है, वो ऐसे काम नहीं करते, गलत काम, असामाजिक तत्व वाले काम नहीं करते। ये कौन करते हैं? जिनको क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। क्रिमिनल माइंड उनको यही करना है, डर, किसी को डराना उनको अच्छा लगता है, खौफ फैलाना अच्छा लगता है, तो हम उनको ही पकड़ते हैं। और हम समाज में हम न्याय फैला रहे हैं, न्याय चाहते हैं, शांति चाहिए। पुलिस, गुजरात पुलिस का लोगों का मोटो क्या है? सेवा, सुरक्षा, शांति, ट्रिपल एस, सेवा, सुरक्षा, शांति। और ये सेवा, सुरक्षा, शांति कब होगा? जब ट्रिपल पी साथ में मिलेंगे। ट्रिपल पी मैं बताता हूँ, पुलिस, पीपल एंड प्रेस, मीडिया, तीनों एक साथ मिलके, समझ लो किसी ने कहीं पे क्राइम हो रहा है तो पीपल कौन बताएगा पुलिस को? पुलिस भगवान नहीं है, वो भी समाज में साथ है। भगवान नहीं कि उनको सब बैठा पर आंख बंद करके पता चल गया। पीपल अच्छा इंफॉर्मेशन देगा पुलिस को, पुलिस के पास आएगा, पुलिस ने काम किया। अब पुलिस ने काम किया तो समाज को, सोसाइटी को कैसे पता चलेगा? वो प्रेस के थ्रू पता चलेगा। तीनों के बीच में वो कम्युनिकेशन होना जरूरी है। पीपल, पुलिस एंड प्रेस, ट्रिपल पी। ट्रिपल पी का कम्युनिकेशन होगा तभी पुलिस सेवा, सुरक्षा और शांति दे पाएगी। है ना? ट्रिपल पी और ट्रिपल एस। ट्रिपल एस एंड ट्रिपल पी, आपका जो ये जो फॉर्मूला है, आई थिंक आई विल हाईलाइट दैट जस्ट बिकॉज ऑफ एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। आपको क्या लगता है कि ये ट्रिपल पी में कहीं पर लैकिंग है अभी, जहाँ पे कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हम जो ट्रिपल एस है उसको एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, एस्टैब्लिश तो है, ट्रिपल एस एस्टैब्लिश। सेवा, सुरक्षा, शांति, पुलिस 24 घंटे हैं, 24/7 दे आर अवेलेबल टू सर्व द नेशन, टू सर्व द लोकल सोसाइटीज, टू सर्व द पीपल ऑफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुजरात पुलिस एज वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन पुलिस. I am talking about Indian police. The people, you can say, if you'll see Gujarat, if you'll see Tamil Nadu, if you'll see West Bengal, if you'll see J&K, मध्य प्रदेश, कोई भी स्टेट ले लीजिए, ऑल पीपल, ऑल जितने पुलिस वाले हैं, सबको सेवा, सुरक्षा, शांति देनी है. वो कब इम्प्लीमेंट होगा? पुलिस भी किसी को परेशान होना नहीं है, ठीक है? नोटोरियस क्रिमिनल्स परेशान करेंगे जनता को, पुलिस परेशान होगी तो फिर वो बचेंगे? नहीं बचेंगे. तो मेन चीज है ट्रिपल पी जरूरी. ट्रिपल पी के बीच में कम्युनिकेशन गैप है अभी. रीजन इज दैट, समझ लो कोई सी बंदे ने क्राइम किया, तो उस बंदे ने क्राइम किया, काफी पब्लिक देखती, पीपल देखती है, ठीक है? तो पीपल पुलिस को फोन नहीं कर पाती, कोई कर लेता, जिसने जिगरा है वो कर दिया, ठीक है? लेकिन वो क्यों डरती? बोले यार पुलिस को फोन करेंगे तो हमारा स्टेटमेंट के लिए बुलाएगी पुलिस, ये ना वो. आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोल रहा हूं मैं, हमारे डीजीपी सर ने इतने अच्छे प्रोग्राम्स निकाले हैं, डीजीपी श्री विकास साहे सर ने इतने अच्छे प्रोग्राम्स निकाले हैं कि दैट जो बैरियर्स है पुलिस और प्रजा और पुलिस का जो बैरियर है वो बहुत कम हुआ. जैसे तरण बात तुम्हारी, तरण बात हमारी जो है, 3 बात आप कहे, 3 बात हम कहते हैं. साइबर अवेयरनेस है. शी टीम ने जो इम्प्लीमेंट हुआ है, शी टीम का गुड टच बैड टच, जो बच्चों का प्रोग्राम्स है. वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम हुआ है, जो कि
ये आज ये जो चीजें सारे स्टेट ऑफ सिर्फ गुजरात पुलिस से नहीं, ऑल ओवर इंडिया पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। और हमने ये तक कहा है, अभी मान लो एग्जाम्पल नहीं, ये फैक्ट है, जैसे कोई इंसान का एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया तो कितने पासर्स बाय ऐसे निकल जाते हैं, बोले कि एक्सीडेंट हो गया, चल ठीक है एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है, डर के मारे, बोले इसको ले जाएंगे हॉस्पिटल में, फिर उसका स्टेटमेंट के लिए बुलाएंगे पुलिस स्टेशन में, ना वो। लेकिन नितिन गडकरी जी सर है जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने इनाम भी रखा है कि अगर आप ले जाओगे तो जान बचाने वाले को भी इनाम मिलेगा। कुछ पोर्टल पे है, नितिन गडकरी जी ने खुद प्लान इम्प्लीमेंट किया हुआ और वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, चल रहा है। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से यही बता रहा हूँ कि पुलिस आपके लिए है, पुलिस आपके लिए है। सेवा, सुरक्षा, शांति कभी मिलेगी जब आप, ठीक है, जब आप हमें बताएं कि आपके सराउंडिंग्स में क्या क्या हो रहा है। हम भगवान नहीं है, हम भी आपके समाज में से ही आ रहे हैं, ठीक है, तो आप हमें बताओगे कि क्या चल रहा है, ठीक है। सो वही मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कह रहा हूँ कि जो गैप है, पब्लिक डरती है कि हम पुलिस को क्यों बताएं, तो इसलिए जो इतने प्रोग्राम्स निकले हैं जो पब्लिक और पुलिस के बीच में जो गैप है उसको भरने के लिए। टॉकिंग अबाउट प्रेस, उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जस्ट बिकॉज काइंड ऑफ अवेयरनेस दे आर जस्ट कीपिंग एट द स्टेज। सेकंड थिंग, जो थॉट प्रोसेस होता है लोगों का एंड जो प्रेस में आता है उसमें अगर गैप है तो अगेन वो ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर मीडिया हाउस है वो कुछ अफवाह फैला रहा है, कुछ झूठ बोल रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहा है जो एक्चुअल में हुई नहीं है, ठीक है। तो अगर ये कम्युनिकेशन गैप हुआ तो फिर ये पूरे संतुलन में एक इम्बैलेंस हो जाएगा। नहीं, ऐसा इम्बैलेंस नहीं होता। एक्चुअली क्या है, अब प्रेस को भी फुल राइट्स दे रखे हैं, जैसे कुछ एफआईआर लॉन्च होती है, कुछ होती है। सो हमारे डीजीपी श्री विकास सहाय सर ने खुद कह रखा है कि जैसे कुछ एफआईआर लॉन्च होती है, सो दे हैव टू, अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत सेंसिटिव ना हो, जैसे पॉक्सो के हो जाते हैं, उसमें नाम रिवील नहीं करते, कॉन्फिडेंशियल एफआईआर होते हैं तो उसमें नाम रिवील नहीं करते हैं। तो नॉर्मल एफआईआर कुछ होता है, सो दे हैव गॉट द राइट्स, द प्रेस एंड मीडिया हैज गॉट द राइट्स, यू नो, टू गो टू द पीएसओ एंड हैव अ एफआईआर कॉपी। सो सत्य हकीकत हम खुद चाहते हैं कि जैसे कुछ डिटेक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्राइम हुआ और उसका डिटेक्शन हो गया, तो पुलिस नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन गुजरात, नॉट ओनली मोरबी, इन एंटायर इंडिया तो प्रेस नोट बनती है, वो प्रेस नोट मीडिया के पास जाती है। और बड़ा क्राइम होता है, कुछ डिटेक्शन होता है, तो उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। सो क्यों? क्योंकि बताने के लिए कि पुलिस काम कर रही है, तो सत्य घटना बता देते कि पुलिस ने ये काम कर, क्राइम हुआ था, डिटेक्शन कर लिया। बट वी आर सीइंग बोथ थिंग्स, दैट some media houses has just kind of things जो मैंने बोला वो, और कुछ सीरियस मीडिया हाउसेस भी है जो है वही दिखाते हैं, जो सच दिखाते हैं और अच्छी चीज़ें दिखाते हैं और पॉजिटिव थिंग्स दिखाते हैं। तो ये दोनों से हमारा जो बैलेंस है बिटवीन ट्रिपल पी, ठीक है, वो कहीं पे डिस्टर्ब हो रहा है अभी आपके हिसाब से? नहीं हो रहा एक्चुअली। अब देखिए, तो फॉर एग्जांपल, नॉर्मल एग्जांपल दूंगा, आप कभी मार्केट में सब्जी या फ्रूट्स लेने गए हो आप? यस। तो आप फ्रूट्स कैसे लोते हैं? सड़े गले मींस रोटन एप्पल्स लोगे कि अच्छे एप्पल्स लोगे? वो तो बाहर निकल देते, बाद में अच्छे लेते। सो व्हाट आई एम सेइंग, Yes. you will go for the good apples. Perfect. So same example, if मतलब मुझे नहीं पता, इन माय नॉलेज सब मोस्टली पॉजिटिव न्यूज़ ही स्प्रेड होता है, नेगेटिव पब्लिसिटी कोई नहीं करता है। if पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को ऑब्जर्व करो ना। देयर इज लॉट ऑफ पॉजिटिविटी अराउंड यू, बस which type of person you are. If you'll go for negativity, then negativity will be around you, surrounded you. If you'll go for positivity, then go for positivity. What do you think that I am doing this Bollywood movies and all, apart from I have to face a lot of hurdles as well. ठीक है, hurdles होते हैं, but you need to मन मक्कम करना है। You need to be 24 hours सबके पास है, 24 hours 1 मिनट या 1 सेकंड किसी को नहीं दिया है। So take the positivity from the news. Coming to the lighter questions,
कोई ऐसी मूवी है जिसको आपको देखकर लगा है कि अगर मैं ये मूवी में होता तो आई शुड बी जस्टिफाइंग दैट पर्टिकुलर रोल? ऐसा तो यू माइट बी आल्सो सेइंग विथ यू एज वेल। या मैं भी मान सकता हूँ, लेकिन राइट नाउ यू आर गेस्ट एंड यू आर इनटू द बॉलीवुड। एक्चुअली हर एक इंसान सोचता है यार मैं भी कर सकता है, हर एक कर सकता है, नहीं, बट एक कोई डायरेक्टर आइकॉनिक रोल होता है जो आपको बहुत पसंद होता है कि अगर मैं ये रोल में होता तो कुछ और ही करके दिखाता, वैसा कोई कुछ मूवी? और तो नहीं। आई थिंक द बॉलीवुड एक्टर्स यू नो दे हैव एवरीवन हैज जस्टिफाइड देयर रोल। दे उन लोग का भी वर्कशॉप्स होते हैं, ठीक है, दे हैव लॉट ऑफ वर्कशॉप, लॉट ऑफ हार्ड वर्क। जो छावा में है ये विकी कौशल, उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया, ठीक है, और इम्प्रोवाइजेशन हुआ है। हर हर महादेव वो बोला था, इट वाज नॉट इन द स्क्रिप्ट। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, इट वाज नॉट इन द स्क्रिप्ट। बीटीएस मुझे पता है, तो उसमें इट वाज नॉट इन द स्क्रिप्ट, उन्होंने खुद इम्प्रोवाइज किया। सो according to me, see, I'm new to this field, right? So they are having a lot of experiences, work है, workshop है, you know, उन्होंने justify किया है। बट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं ऋतिक रोशन का रोल करूंगा, लक्ष्य मूवी का वैसा मैं रोल करना चाहूंगा। फिर मैं विकी कौशल सर का रोल चुराना चाहूंगा। कौन सा? ये छावा में आई वुड लाइक टू डू। बट ठीक है, आई एम न्यू टू दिस फील्ड, बट धीरे धीरे आएगा वो दिन। मैनिफेस्टेशन, यू नीड टू डू मैनिफेस्टेशन, राइट? आई हैव मैनिफेस्टेड, कृष्ण भगवान मुझे हेल्प करेंगे, लॉर्ड कृष्ण विल हेल्प मी। आई एम वेरी मच यू नो। एफर्मेशंस क्या है आपके? कोई एक बताइए, कोई एक एफर्मेशन जो आप करते हैं। मैनिफेस्टेशन नहीं, एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन में भी एफर्मेशंस करते होंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, कोई एक बताइए। मैं करूँगा, बस यही करना है मुझे। कोई भी रोल मिले करूँगा, कोई भी रोल मिला मैं करूँगा, एंड आई विल जस्टिफाई द रोल। राइट। एनी मूवी ऑन पुलिस ऑफिसर दैट यू वांट टू डू? रीमेक बनाते हैं, चलिए गुजराती में कोई हिंदी मूवी है जो बॉलीवुड में ऑलरेडी गुजराती इट इज इन द टेरिटरी और सीमित हो जाती है गुजराती मूवी, ठीक है, टेरिटरी हो जाती है। दैट्स द रीजन आई एम नॉट यू नो आई एम नॉट गोइंग फॉर गुजराती मूवी। ओके, आई एम नॉट गोइंग फॉर हॉलीवुड एट ऑल। या मुझे ऑफर्स हुई है 2-3 गुजराती मूवीज, लेकिन मैंने नहीं करी बिकॉज आई डोंट वांट टू यू नो, आई वांट टू एक्सपेंड, आई डोंट वांट टू बी फ्रॉग ऑफ अ वेल, आई वांट टू बी फिश ऑफ क्रोकोडाइल ऑफ अ सी, ऑफ समुंदर का मुझे बनना है। तो कभी स्विम करता रहो, थक जाना चाहिए, समुद्र खत्म नहीं होना चाहिए। चलिए, कोई भी एक मूवी, बॉलीवुड मूवी ऑन पुलिस ऑफिसर हम रीमेक बनाना चाहते हैं तो वो कौन सी होगी आपके हिसाब से? सिंघम ही बनाओ। सिंघम रीमेक में बनाएंगे। और सिम्बा इज आल्सो गुड। सिम्बा में मतलब इट्स अ काइंड ऑफ विटी रोल, जिसमें विटी रोल कॉमेडी बहुत है। आई एम सम टाइम मतलब ऐसा ही हूँ मैं। अच्छा, इन रियल लाइफ मजाक मस्ती वाला हूँ मैं। तो सिम्बा अगर रिक्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी कास्टेड। ऑब्वियसली रोहित शेट्टी को भी हम मैसेज कर देते हैं। नहीं, एक्चुअली आई हैव अ मैनिफेस्टेशन दैट मुझे रोहित शेट्टी सर के साथ काम करना है। हाँ, बट उनकी कॉप मूवी है, यस, तो मुझे उनके साथ काम करना है। रोहित शेट्टी सर, अगर आप सुन रहे हो ना, आप रियल कॉप्स बनाते हो, ठीक है, एक रियल कॉप आपके साथ काम करना चाहता है, सो प्लीज मेरी बात सुन लेना भाई। रोहित सर को मैसेज पास कर देना दैट आई वांट टू वर्क इन योर मूवी एज अ रियल कॉप। Okay, please do the needful. Thank you. Yeah. Talking about appreciation to the police officers, Maharashtra has a very good setup like Umang, जो वो particularly police officers के लिए करते हैं, to appreciate the police officers by the Bollywood actors आते हैं वहाँ पे, परफॉर्मेंसेस होती है और वो सेलिब्रेट करते हैं पुलिस ऑफिसर्स को। ये धीरे धीरे अब गुजरात पुलिस में हो रहा है। Okay. ठीक है, देखो मैं बाहर निकला, मैं शेल में से बाहर निकला, बिकॉज डीजीपी सर विकास साय सर इज वेरी मच सपोर्टिव। करना है करो, बट शर्त है वर्दी पे दाग नहीं लगना चाहिए। वो तो डेफिनेट, ठीक है। और बॉस मेरे बहुत अच्छे हैं, विकास साय सर, ही इज वेरी मच पॉजिटिव। जैसे स्पोर्ट्स में एम्पावरमेंट हो रहा है जी, अप्रिशिएशन मिलता है स्पोर्ट्स, दिस इज एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ फील्ड। ऐसे जैसे स्पोर्ट्स है, फील्ड है,
क्रिकेट में डीजी कप होता है एवरी ईयर के 3-3 महीने लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं जो पुलिस ऑफिसर्स होता है तो 3-3 महीने खेलते हैं क्रिकेट सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट फील्ड आई विल स्प्रेड एन अवेयरनेस कि देखो पुलिस ऑफिसर अभी पूरे गुजरात में क्या इंडिया में वायरल चल रहा हूँ मैं अभी राइट नाउ यू नो दैट ये पुलिस ऑफिसर बॉलीवुड में जा रहा है पुलिस ऑफिसर बॉलीवुड में जा रहा है इन एंटायर न्यूज चैनल इज कमिंग राइट नाउ सो ये डीजीपी सर का जो ब्लेसिंग्स है और सपोर्ट है कि आगे बढ़ो हम हैं साथ में तो ये अच्छी बात है ना सो कर रहे हैं हम और भी करेंगे Yeah, but my question was Gujarati industry should also celebrate this kind of like Umang. हाँ। They can copy the concept, right? Umang करे मैं जैसे- समझ रहा हूँ मैं लेकिन अभी आई एम अ स्मॉल ऑफिसर ठीक है स्मॉल ऑफिसर लेकिन अभी बीच में हर्ष संघवी और भूपेंद्र पटेल सर दोनों सर ने अभी जो पुलिस का जो एक इवेंट किया था जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटी सब आए थे ठीक है हमने बड़ौदा में एक शौर्यम करके एक इवेंट करा था शौर्यम किया था इट वॉज नॉट लाइक एज उमंग बिकॉज उमंग में बॉलीवुड सेलिब्रिटी सब आते पुलिस भी डांस करती है उसमें साथ में एवरी ईयर दे डेडिकेट फॉर महाराष्ट्र पुलिस एवरी ईयर yeah. और ऐसा शौर्यम में हमने बड़ौदा में डीवाईएसपी सुनील पाटिल सर थे शमशेर सिंह सर थे जो तेरे अभी वो है एडीजी है बीएसएफ के क्या नाम कमिश्नर बताया? सर शमशेर सिंह सर शमशेर सिंह he is DG right now full DG and he is an ADG of BSF right now deputation okay तो उनके अध्यक्षता में हमने शौर्यम किया था बड़ौदा में बहुत अच्छा चला था और उसी का जो पूरा प्रोग्राम था हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव उसमें भी ये फुल कॉपी किया था हमने Yeah. तो अच्छा है 1 साल चला उसके बाद कहीं स्टॉप हो गया अब यही हर साल उमंग की तरह इधर हो तो बहुत बढ़िया है मैं उसका चार्ज लेने को तैयार हूँ इवन मैं भी उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ तो वही बात है कि अगर सीनियर ऑफिसर्स और जो हमारे गृह मंत्रालय है ऐसे सपोर्ट करे तो मैं क्या बोलते हैं इनिशिएटिव मतलब इनिशिएटिव लेने को तैयार हूँ लीडरशिप लेने को तैयार हूँ पूरी जिम्मेदारी में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ एंड अच्छे पुलिस में क्या है अच्छे कला है अच्छे कलाकार है लेकिन वो कहीं दबे हुए दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम द नटशेल स्पोर्ट्स में सी आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन आई एम अ स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट पावर लिफ्टिंग यस आई एम स्टेट लेवल सिल्वर मेडलिस्ट गोल्ड स्टेट लेवल 200 मीटर गोल्ड 400 मीटर सिल्वर शॉर्ट पुट गोल्ड आई एम इनटू स्पोर्ट्स आल्सो बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अ गुड डांसर आई एम अ गुड एक्टर I'm a good police officer who detects and maintains good law and order. So you can say, touchwood, I'm multi-talented. You are sitting with a multi-talented. Nah, I'm sure that I'm feeling that aura. Thank you. Yeah. Coming to the last point of view, that what was your experience regarding youth currently? Youth. Yes. Youth, you know, they are not right now. The youth are into the mobiles and all, right? Youth, I'm talking. They are into the mobiles. So the mobile, it is good. ठीक है एक तरह से अच्छा भी है पर एक तरह से खराब भी है most of the youth are they're spoiling their future by implementing themselves they're engaging themselves in mobile while watching reels and all right now the turning point of your life is your teenagers from 13 to 19 either you can make your career or you can spoil your career so this youth they need to understand they are in the comfort zone they are into their nutshell they need to come out from the nutshell they need to come out from the comfort zone then and there only they can achieve their success but only they are not responsible for that their behavior why the behavior because they are into the mobile cell phones if they the mobile phone has been snatched from them then they will scold they will shout at their parents sometimes they are committing suicide also we have seen that because of parents have not given the mobile
he or she just committed suicide. 2-3 games are, 2-3 games are also, responsible for these suicides of this child, current youth. They are into this PUBG and all, they are wasting their time in this. So I would suggest you through your podcast that they need to, come out of the comfort zone. Earlier at our age, we didn't had mobile and all. Yeah. So we used to play cricket and all. So we used to be mentally and physically strong. But right now the youth, they don't want to come out from the bed. They need to lie on the bed. They are not into outdoor activities and all. So they need to work on this outdoor activities. They need to be mentally and physically strong. What do you think? Who is responsible for this situation? Somewhat parents and somewhat their, because the parents, in our time, if we used to fall, we used to get another kick from our parents. Yes. If we used to fall, गिर जाते थे, हमें दोबारा एक लात लगती थी. गिर कैसे गया? धुलाई भी होती थी. मैं 12th में मार खा चुका हूँ. मैंने भी खाया है. हाँ, तो वही, that's the reason. और now right now क्या है? अरे बच्चे को लग गई. अरे क्यों लग गई? अरे बेटा क्या हो गया? कहीं चोट तो नहीं आई? और मारो. गिर कैसे गया? ध्यान कहाँ थे? हमें तो माँ को हुई है, ठीक है, छोटा. मम्मी ने गल का क्या बोलते हैं उसको, बिटर गार्ड की सब्जी बनाई, करेला. तो मुझे नहीं अच्छी लगती थी. तो मम्मी ने बोला खा ले. नहीं खाना मुझे, कुछ और बनाओ. तो मम्मी ने वो जो चिमटा होता है ना, किचन से फेंका. समरसॉल्ट करते सीधा इधर लगाओ, फट गया था इधर. तो साले खाएगा नहीं, तेरे लिए बनाई है मैंने, खा. तो मुझे नहीं खाने. फिर बोले कि अब क्या, मैं अब तो नहीं खा पाऊंगा. डॉक्टर के पास ले गए, इधर थोड़ा फिर हुआ. बट और अभी के बच्चे, किसी को मारो, क्यों मारा, ये बात होती है. अपब्रिंगिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द अपब्रिंगिंग, ठीक है. और ये मोबाइल है ना, बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी फैलाती है कि क्या है. उसमें कितने सेमी पॉन यू कैन से दैट, सेमी पॉन भी रील्स आ जाती है, गंदे रील्स भी आती है. तो बच्चों को क्या क्यूरियोसिटी हो जाती है, ये क्या चीज है. बच्चों को देखना, अच्छी चीज इम्प्लीमेंट मतलब ऑब्जर्व नहीं करते, वो गंदी चीज जल्दी ऑब्जर्व करते हैं. तो उनको क्यूरियोसिटी हो जाती है कि गंदी चीज क्या है. तो गंदी चीज के चक्कर में वो अपना करियर बर्बाद कर दे. सो मैं तो ये कहूँगा कि ये कोविड की वजह से काफ़ी बच्चों का करियर खराब हुआ है. कोविड की वजह से थ्रू मोबाइल हुआ स्टडीज़, और मोबाइल में इंस्टा पे या फिर नॉर्मल जो भी सोशल मीडिया पे नॉर्मल सेमी पॉर्न और न्यूड्स ये सब आने लग गए. जिसकी वजह से उन लोग ने अपना टाइम उसमें बर्बाद किया, जिसकी वजह से परसेंटेज भी कम आए. ठीक है. अभी मैं जोक कहना चाहूँगा, कोविड कब हुआ था? 2020 पक्का. यस. एक बंदा, लड़का, मार्कशीट लेके मतलब एग्जाम के लिए, मतलब उसके लिए, इंटरव्यू के लिए. बोले कब पास किया? बोले 2020 में. बोले कौन सा बैच? बोले कि कोविड बैच. बोले ठीक है, गो होम, स्टे सेफ. जॉब नहीं मिलेगी. यू आर अंडरस्टैंडिंग? स्टे होम, स्टे सेफ. वो ग्रेस से पास हुए थे. हाँ, वही तो बात है. ये बात है. उस वक्त सबको पास कर दिया था, ताकि किसी का साल ना खराब हो. तो दैट इज द रीजन. मोबाइल इज जितना अच्छा उतना खराब भी है. आप कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस फॉलो करते हैं मोबाइल के लिए स्पेशली? मोबाइल में मैं तो मोबाइल बहुत कम यूज करता हूँ, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कहीं बोर हो गया या बंदोबस्त में हुआ, कुछ हुआ, बाहर गया, वाहन चेकिंग है, किसी का फोन होना है तो अटेंड कर लिया फोन. अदरवाइज फोन मैसेज आता है, मैं देख नहीं पाता हूँ, मैं बहुत कम यूज करता हूँ. स्टिल आपके फॉलोअर्स 22,000 है अभी. वो तो मैंने अभी हुए हैं. मुझे आई वाज बीन टोल्ड दैट वाज माय प्राइवेट अकाउंट. रिसेंटली हार्डली 1 मंथ हुआ होगा मैंने उसको पब्लिक अकाउंट किया. अर्लियर माय अकाउंट वाज प्राइवेट ओनली. राइट. मुझे कहा गया था ऊपर से that you need to ऊपर से in the sense keep it public, means Bollywood industry से कहा गया था that you need to put your तो क्या आपके followers बढ़ेंगे.
राइट। डेली 100 जितने 100-150 बढ़ जाते हैं, मैं उनके किसी के रिप्लाई भी नहीं देता हूँ। हम्म। आते हैं सिलेक्ट करके डिलीट, सिलेक्ट करके डिलीट, अनरीड करके सिलेक्ट एज रीड, फिर डिलीट मार देता जितना टाइम आप सोशल मीडिया को रेफर करने के लिए नहीं कर रहे उससे ज्यादा रिलेट करने में अभी कर रहे हैं। हूँ। हाँ, मैं डिलीट कर देता हूँ, बट इतना है जब मेरा बर्थडे होता है, कुछ विश आता है, तो फिर मैं सबको 7 दिन लग जाते हैं मुझे रिप्लाई करने। इतने सारे मैसेजेस, मोर देन 5000 मैसेजेस आए, नॉट फ्रॉम दी नॉट इंस्टा फॉलोअर्स भी, नॉर्मली जो व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करते हैं, मतलब ओवरऑल बोल रहा हूँ मैं, नॉट ओनली इन इंस्टा, फेसबुक हुआ, ठीक है, बस इतना है। राइट राइट। So coming to the point of handling the situations while parents have some questions, while people have some questions, लोगों का एक परसेप्शन है पुलिस के बारे में जो आपको पता है, ठीक है? तो वो अगर चेंज करना हो लोगों को, तो लोगों को एट द फर्स्ट स्टेज क्या बिलीव करना चाहिए पुलिस के बारे में? बस ये फर्स्ट स्टेज एक ही है, दैट पुलिस समाज में से ही आ रही है, दे आर कमिंग फ्रॉम द सोसाइटी इटसेल्फ। वी आर, हम लोग भगवान ने नहीं उतारा कि हम लोग राक्षस से नहीं उतारा, हम समाज में से आए, एंट्रेंस एग्जाम दिए है, फिजिकल एग्जामिनेशन दिए, तब जाके ऐसा रहा है। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, Doesn't matter, yeah. ठीक है, डजंट मैटर, समाज में से ही आ रहा है। तो पुलिस कोई हमारे कोई सिंगड़े नहीं लगे, ठीक है, वी हैव गॉट नॉट गॉट होम्स, Yes. सो हमसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर सही इंसान होगा तो वो डरेगा क्यों? और पुलिस बस समाज से, सोसाइटी से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से यही कहूंगा कि पुलिस प्रजा की फ्रेंड है, पुलिस इज द फ्रेंड, द बेस्ट फ्रेंड ऑफ सोसाइटी। सो कुछ भी प्रॉब्लम हो, प्लीज कम टू अस। आपने देखो एक नॉर्मल फैक्ट है, मंदिर जाते हो दर्शन करने, Yes. मस्जिद जाते हो नमाज पढ़ने, कुछ भी चर्च जाते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब भी कभी ताले लग जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई दोपहर बाद मंदिर बंद हो, ताले लग जाते हैं, फिर शाम को दर्शन खुलेंगे, पट खुलेंगे। पुलिस स्टेशन में कभी ताला लगता देखा? एक बार खुल गया तो इनॉग्रेशन के बाद कभी पुलिस स्टेशन में ताला नहीं दिखेगा, 24/7 पुलिस स्टेशन खुला रहता है। नोटिस करना, नोटिस करने की भी जरूरत नहीं है, कभी भी पुलिस को फोन कर सकते हैं, कोई भी कर सकता नहीं, है। मतलब जैसे कोई नॉर्मली कंप्लेंट आता है पुलिस स्टेशन, पीएसओ 3 शिफ्ट में होता है, खुला ही होता है। पुलिस स्टेशन ऑफिसर बोलते हैं जिसको हम, पीएसओ को पुलिस स्टेशन ऑफिसर, 3 शिफ्ट में होते हैं, इन वे में होते हैं, कंप्लेंट वाले रहने वाले होते ही 24/7। एक बार जो पुलिस स्टेशन का इनॉग्रेशन हो गया, एसपी, डीआईजी या आईजी सर या डीजीपी सर किसी भी हो गया, तो वो फिर कभी बंद, ताला नहीं लगेगा अनलेस एंड अनटिल वो खंडर ना हो जाए, मतलब उसको नया खुला ही रहता है। पुलिसमैन कैन बी नेवर ऑफ ड्यूटी, इसीलिए बोलते हैं। यस। लोगों को एक और भी चीज दिमाग में चलती रहती है, और जनरल परसेप्शन, तो अगर हम पुलिस स्टेशन गए, पुलिस के पास गए और हमने उसको कोई बात बताई, कोई कंप्लेंट बताई, ठीक है, तो उसके बाद की जो मतलब प्रोसीडिंग्स होती है अप टू द कोर्ट लेवल, ठीक है, तो वहाँ पे पुलिस का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पे चार्जशीट अगर फाइल हो गई, उसके बाद कोर्ट देखेगा, लेकिन तब तक आपका रोल बहुत ही मेजर होता है। तो ये सारे प्रोसीडिंग्स में लोगों को कहीं पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि ये जो आईपीसी की जो धाराएं होती है जो आप लगाते हैं चार्जशीट में, अभी सेक्शन सब चेंज हो गया। यस यस, बोलिए। तो वो सेक्शंस आप कैसे लगाते हैं, और व्हाट आर द परसेप्शंस और व्हाट आर द टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व, जो कॉमन पीपल को पता नहीं है। वो तो वो जस्ट यही रिपोर्ट करता है कि मेरे यहाँ पे चोरी हुई, सपोज आपको पता है कि वो चार्जशीट कैसे फ्रेम करनी है, कौन कौन से चार्जेस लगेंगे, तो वो टेक्निकलिटीज क्या रहती है फॉर द अवेयरनेस ऑफ द पीपल। सी, अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग क्राइम्स के अलग अलग सेक्शंस है। बड़े जैसे बड़े बड़े क्राइम्स हो, बड़े बड़े अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो हम उनको बता देते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ एनी कंप्लेनेंट कम्स टू अस, राइट, तो उसका हम कंप्लेंट ले लेते हैं, वो ओरली बोलेगा, हमारा राइटर लिखेगा, ठीक है। तो और इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन और ऑल, हम लोग को वहाँ पे जाना पड़ता है उनके पॉइंट पर, तो जो भी लिखवाते हैं उसके हिसाब से, जो एमओ मॉडस ऑपरेंडी जो क्राइम की है उसके हिसाब से हम सेक्शंस लगा देते हैं। बिकॉज, और जब तक सेक्शंस लगाने के बाद फिर बाद में सबके स्टेटमेंट्स लेते हैं, जो विक्टिम है, जो कि क्रिमिनल अगर पकड़ जाता है उसका भी स्टेटमेंट लेते हैं, फिर उसके बाद चार्ज फ्रेम करके हम उनको चार्जशीट करके उसको कोर्ट में सबमिट करते हैं। पुलिस का काम है गुनहगार को पकड़ना और जो विक्टिम है उसको जस्टिस दिलाना।
जो जुडिशरी का काम है, सजा देना ना देना जुडिशरी का काम है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यस। कि कैसे वो चार्ज फ्रेम करता है। और पुलिस इसमें बखूबी जानती है कि विक्टिम को क्या जस्टिस दिलाना जानती है। तो ऐसा कुछ रहता नहीं है, लेकिन बता देते कि ये सेक्शंस लगा, इस सेक्शंस की बार इसका मतलब ये है, ये सेक्शंस का मतलब ये है, हम कंप्लेनेंट को बता देते हैं। लेकिन सर सच ये है, पब्लिक परसेप्शन जो भी हो, पब्लिक के दिमाग में जो भी हो, अगर उनके साथ कुछ भी हो गया, उनको याद तो 2 ही चीज़ आती है, या तो पुलिस में जाएँगे या कोर्ट में जाएँगे। परसेप्शन कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क यस नहीं यस पड़ता। यस। वो जाए तो जाएगा तो पुलिस स्टेशन जाएगा या तो कोर्ट में जाएगा, क्योंकि 2 ही उसके रास्ते हैं एट द एंड, ठीक है? और पुलिस के पास कौन आता है? जो जिसके पास ग्रीवेंस होगा, हुँ, जो कि ग्रीव होगा, यस, द पर्सन हु इज ग्रीव, यू नो, filled with grievance, he will only, he or she will come to the police station. यस, So हमारा काम है उनको जस्टिस दिलाना, और जस्टिस दिलाती है तभी तो हम हैं। या कितने अप्रिशिएशन तो नहीं कहूँगा, छोटे छोटे बहुत माइलस्टोन है मेरे पास। अभी रिसेंटली मुझे लास्ट मंथ अप्रैल महीने में मुझे सीएम श्री भूपेंद्र पटेल सर से छोटा सा अप्रिशिएशन मिला था, दैट आई डिडंट थॉट दैट आई वुड गेट एन अप्रिशिएशन फ्रॉम हिम। विंटर सीजन में मैं अच्छे क्वालिटीज़ के, ऐसा नहीं कि 100-200 रुपए वाले, अच्छे क्वालिटीज़ की कम ब्लैंकेट्स में ऐसी गरीबों को दिया था। सो I was in tears. One elder uncle who was shivering in cold, he was sleeping on the footpath. I gave him blanket. Then he told me कि सर आपने कंबल दिया, थैंक यू। मतलब गुजराती में बोला था। फिर बोले कि सर आपके लिए चाय कॉफ़ी कुछ लेके आऊँ। तो मेरे आँख में से ऑन द स्पॉट रात के 2-2:30 बजे थे, तो मुझे बहुत इमोशनली वो हो गया था, टेकन वो हो गया था। बोले कि बेचारे के पास कुछ है नहीं, फिर भी मुझसे बोले सर आपके लिए चाय कॉफ़ी लेके आऊँ। तो मैं इतना बोलता हूँ कि भगवान मुझे और दे, भगवान मुझे और दे कि मैं और ऐसे गरीबों की सेवा कर सकूँ। मैं बस इतना बोलता हूँ कि जीना है ना ज़िंदगी, तो अपने से नीचे लोगों को देख के जियो, कि भगवान ने तुम्हें इस काबिल तो बनाया कि तुम इस जगह पर हो। यस, नीचे से ज़िंदगी, अगर कभी घमंड आ जाए ना आप में कि मैं ये हूँ, मैं वो 30 मार खाऊँ, ये ना हो, तो अपने से नीचे वाले को देख लेना, तब सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। घमंड रखो, एटीट्यूड रखो, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड। घमंड मत रखो, रखो एटीट्यूड रखो, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, वो आपको काफ़ी हद तक आगे ले जाएगा। और बाकी आपकी जो किस्मत की जो रेखा है, वो तो अपने हिसाब आपके हिसाब से कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, बस वैसे ही होगा। आई थिंक यूथ के लिए अभी यही है, कंफर्ट जोन से बाहर आना। यस एग्जैक्टली। राइट। तो सर, एज अ कंक्लूसिव रिमार्क्स, व्हाट डू यू जस्ट वांट टू कन्वे अ मैसेज, अ वन लाइनर मैसेज टू द यूथ? एक एक स्टेटमेंट देना चाहूँगा पूरे यूथ को, कोई अगर टारगेट है, गोल है, उसको पकड़ना है ना, तो उसके पीछे लग जाओ। और एक ही मोटो रखो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, मैं पिछले पॉडकास्ट में भी बोल चुका हूँ। बोले कि घर बैठे ये मत सोचो कि मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बाहर निकलोगे, तुम बाहर निकलो, काम करो, आउटपुट दो। क्या पता ऊपर वाला भी तुम्हारे भरोसे बैठा है कि तू बाहर निकल कंफर्ट जोन से और मैं तेरी मदद करूँ। भगवान से मांगने से पहले तुम वर्क तो करो। रही बात, भगवान वो सब कर लेगा, ही विल हेल्प। 99% तुम्हारा एफर्ट्स चाहिए, ओनली 1% लग काम करता है। 99% योर वर्क इज इम्पोर्टेंट। अगर मैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता तो मैं आज को ज्ञान व्यापी जगत ये सब नहीं करता, और आगे भी बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स करूंगा मैं। एवरीथिंग इज इन पाइपलाइन, यू विल कम टू नो स्लोली। Definitely, we will also highlight that if it is coming to us. ओके, बाद में आएगा भी नहीं बताऊंगा। Sir, only one expectation. आपके लाइफ पे अगर कोई मूवी बनती है, वो मूवी का टाइटल आप क्या हो?
ऐसी भी लाइफ होती है, ऐसी भी लाइफ होती है। अच्छा, ग्रेट ऐसी ग्रेट। भी लाइफ होती है। वो मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है मेरे पे। ऑलरेडी या आई एम अ रजिस्टर्ड राइटर। ओके, राइटर्स एसोसिएशन। यस, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन, मुंबई से राइटर एसोसिएशन का कार्ड है मेरे पास। ग्रेट ग्रेट। सो ये भी प्रमोट करने की चीज है कि यू हैव योर स्टोरी, इफ एनीबॉडी बट कोई फिनेंसर चाहिए, वो कोई तो आएगा सर, वो आपके तो पास आएगा। आपका अफर्मेशन है, आपका मैनिफेस्टेशन है, हाँ, कोई ना यस, कोई तो आएगा आपके पास आपकी स्टोरी के लिए। आएगा आएगा। ऐसी भी एक लाइफ होती है, ऐसी भी लाइफ होती है। ऐसी भी लाइफ होती रिटर्न बाय अरुण मिश्रा। है। या डेफिनेटली आई विल आल्सो एडमायर दैट कि ये स्टोरी आए। हाँ, आएगी, और दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड प्रोजेक्ट। यस यस। एंड आज तक की बॉलीवुड हिस्ट्री में ऐसी कोई स्क्रिप्ट आई नहीं है, नहीं आई है। वो तो आपने पूछ लिया इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बताता नहीं। ऐसी भी लाइफ होती है, इट्स अ फैमिली ड्रामा, स्पोर्ट्स, लव, दोस्ती, फिर डिशुम डिशुम भी है, फिर इमोशंस है। लव बोला आपने तो इमोशंस तो होगा ही। यस, लव विद गर्लफ्रेंड, इमोशंस विद फैमिली, या सब चीजें उसमें, सारा सब मिर्च मसाला भरा पड़ा है उसमें। अगर आपके कुछ हो फिनेंसर तो देख लेना। डेफिनेटली अगर मुझे मौका मिला तो मैं ही प्रोड्यूस करूंगा, लेकिन या बाय तो उससे पहले तो मेरी मूवी बन जाएगी भाई। गिफ्ट या थैंक यू वेरी मच सर। आपका जो ऑरा है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो एक्सप्लेनेशन का टाइप है, आपका जो एक अपब्रिंगिंग है, प्लस आपका जो अभी ड्यूटी है, ये सारी चीजें मिला के यू आर अ पैकेज व्हाट आई Thank you, फील, thank राइट? you. योर फिजिकल फिटनेस, योर मेंटल स्ट्रेंथ, प्लस योर पैशन एंड योर डेडिकेशन टूवर्ड्स द नेशनल ड्यूटी, ये सारा एक पैकेज है, ठीक है? तो ये पैकेज से बात करके आज बहुत अच्छा लगा। आज मेरे भी थोड़े थोड़े फंबल्स हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर ऑरा, No, no, it's अदरवाइज okay. इट डजंट हैपन एट एवरी टाइम, बट या इट्स हो रहा, होता कभी कभी होता ये है। डर हमें अच्छा लगा। Yes. So, आपके ऑरा की वजह से है वो। ना तो ना, थैंक यू ऐसा वेरी कुछ मच। नहीं है, डरने की बात नहीं, पुलिस प्रजा की मित्र है। वो तो हम समझते हैं, लेकिन हो जाता है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर और कोई है जिसको आप थैंक यू बोलना चाहते थ्रू अवर पॉडकास्ट? सबसे पहले मैं थैंकफुल कहना चाहूँगा हमारे सीएम श्री भूपेंद्र पटेल सर को, गृह मंत्री श्री हरसंघवी सर को, डीजीपी श्री विकास साहे सर को, डीजीपी मतलब और भी डीजीपी है, डीजीपी श्री शमशेर सिंह सर, एडिशनल डीजी जो सूरत कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत सर, नरसिम्हा कोमर सर, एडिशनल डीजी जो नरसिम्हा कोमर सर है, एडिशनल डीजी निपुण तोरवाने मैडम जो कि सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है होम मिनिस्ट्री में, फिर आईजी श्री अशोक यादव सर है, आईजी श्री असारी सर की मैं बात कहना चाहूँगा, वो दोस्तों के दोस्त से यारों के यार है। असारी सर वो क्रिकेट जगत के बेताज बादशाह है, हमारा डीजी कप होता है, ही इज़ द नोडल ऑफिसर एवरी टाइम। वो मेरे बड़े भाई है, आईजी ऑफिसर होने के बावजूद भी, इज एन आईपीएस ऑफिसर होने के बावजूद भी वो तो बहुत डाउन टू अर्थ है। हमारे साथ क्रिकेट ग्राउंड में हमारे साथ बैठ जाते हैं और इतना अच्छा हो रहा है, बहुत पॉजिटिविटी है, उनको सब प्यार करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर की रिक्वेस्ट पर, मेरी रिक्वेस्ट पे आप हमारे पॉडकास्ट में आइए। जी जी, असारी सर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और उनकी स्माइल धर्मेंद्र सर की तरह है। क्या बात है, धर्मेंद्र सर की, उनका ऑरा इतना ऑसम है ना, बहुत अच्छा ऑसम है, और वो सबका ध्यान रखते हैं। किसी के फैमिली इश्यूज हो, कुछ हो जाता है तो कुछ भगवान ना करे कि कैजुअलिटी हो जाती है, सब पैसे इकट्ठे करके नॉर्मल चैरिटी डोनेशन करते हैं। काइंड ऑफ डायनामिक पर्सनालिटी। या ही इज गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट एसपी श्री राहुल त्रिपाठी सर है, फिर डीवाईएसपी श्री प्रतिपाल सिंह झाला सर है, डीवाईएसपी श्री समीर साड़ा सर है, डीवाईएसपी श्री दलवाड़ी सर है, ठीक है, सारे ऑफिसर्स है, सारे सबऑर्डिनेट्स है, बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छी तरह रखते हैं, बिकॉज दे नो दैट आई एम इनटू द गुड लाइन, आई एम इनटू द गुड फ्यूचर। It's a human psychology, everyone wants to grow ahead, either you, it's me, or either your cameraman. Everyone wants to go ahead, higher. Yes. So at the last I would conclude my conversation with you that by thanking my batchmates
3-4 नमूने तो है उसमें, ठीक है, जो थोड़ा उनके बहुत भी नाम दे देना सर, हम दिखा देंगे। नाम नहीं देना, बेचारों को बुरा लग जाएगा. अच्छा, कोई बात So I really appreciate my batchmates. नहीं। वो हमेशा by my in journey, my lows and ups and downs, ठीक है, they are always with me. I really appreciate you guys. My 2016 batch, Fighter 16 हम बोलते हैं, उस बैच का नाम है Fighter 16. फाइटर 16। Yeah, I really appreciate you guys. So keep supporting me and बस ऐसे ही प्यार देते रहना. I love you. I love you my guys. Thank you. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे अरुण मिश्रा, एक कंप्लीट पैकेज। आप उनको जल्दी स्क्रीन पर देखेंगे और ऐसे ही पॉडकास्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए माइंड मैपिंग पॉडकास्ट।